جاتے ہیں باہر اور وہاں پہ جا کے ان کو کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے. ان کے حلیے خوفناک ہی تھے, ٹیٹو بنے ہوئے ہیں ان کے. تشدد کتنے دن ہوتا رہا؟ لگاتار ایک دن بھی مس نہیں آیا. کان کاٹ کے وہ بوٹیاں ہمیں دکھاتے تھے, اگر آپ کے گھر والوں نے پیسے نہیں دیے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا. جو اکاؤنٹس والے ہیں یہ بھی ادھر ہیں, وہ دکان والے وہ بھی ادھر ہیں, جو بندے یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. 90 لاکھ آنکھیں بند کر کے آپ نے سر وہ ہم نے رسک لیا تھا, 50 لاکھ دی ہے. سر ہم نے رسک لینا ہی تھا. بچے تو آلریڈی ان کے پاس تھے, ہمارے پاس کون سی چوائس تھی آپ بتائیں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. ناظرین, رائیونڈ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جیا بگا. یہ 3 نوجوان جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاتے ہیں باہر اور وہاں پہ جا کے ان کو کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے. کون لوگ ہیں؟ بچے کے ماموں بھی ساری تفصیل یہ بتائیں گے. بچوں سے بات کرتے ہیں پہلے. اپنے بچوں کے لیے جا کے محنت کریں گے, کوئی ایک اچھا مستقبل ان کے لیے بنائیں گے, یہی خواب رکھا تھا اب سوچ میں, لیکن وہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہو گیا. تو یہ پاکستانی ایجنٹوں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی, تو انہوں نے ہم سے ڈیل کی تھی کہ آپ کو لاہور سے ہی بائی ایئر بھیجیں گے فرانس, یعنی شینجن ویزا دیں گے, یورپ کی کسی بھی کنٹری آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں سارے ڈاکومنٹ پورے کر کے دیے اور 15 لاکھ روپے ایڈوانس دیے. اسماعیل شہزاد نام کا شخص تھا. ٹوٹل ایک بندے کے کتنے پیسے تھے؟ ایک بندے کا 30 لاکھ میں ڈن ہوا تھا. تو 3 کے ہو گئے 90 لاکھ روپے. 90 لاکھ روپے. جی. ٹھیک ہے. اس میں سے 15 لاکھ ہم نے ایڈوانس ان کو دے دیے تھے. تینوں کے 15 ایڈوانس دے دیے یا صرف ایک کے دیے؟ نہیں, تینوں کے دیے تھے. 5-5 لاکھ روپے ہم نے ایڈوانس دیے. تو اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد یا 2.5 مہینے بعد انہوں نے ہمیں ایک ویزا سینڈ کیا فرانس کا. ٹھیک ہے. تو وہ شینجن ویزا تھا. تو جب انہوں نے پھر ہمیں بولا کہ بھئی 2 دن کے بعد کہ یہاں سے آپ بائی ایئر نہیں جا سکتے, لاہور ایئرپورٹ سے نا تھوڑا سا FIA کا ایشو آ رہا ہے, وہ جانے نہیں دیتے, وہ ہم پکڑے جائیں گے, ایسے بلائیں گے, ایسے جائیں گے تو آپ سے پیسے لیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کافی ایسے جھوٹ بولے ہم سے. تو میں نے کہا اب کیا اس کا حل ہے؟ انہوں نے بولا بھئی آپ کو ایران جانا پڑے گا, ہم ایران کا ویزا آپ کو لگوا کر دیتے ہیں. تو وہاں ہم گئے ہیں تقریباً. ایک تو ہم سفر میں بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اس کے بعد ہم کھانا کھایا تھا اور ہم لیٹ گئے چاروں ایک ہی کمرے میں نا. ایک کمرے میں لیٹے. 4 لوگ تھے 3 تھے؟ 3 تھے, ایک اور تھا لڑکا ہمارے ساتھ, وہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹل ہم ویسے 4 ہی تھے. تو انہوں نے پھر ایک ایک کر کے اٹھایا. تقریباً رات کا ٹائم تھا, 5 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ 8 سے 9 بندے تھے, ایک ایک کر کے اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے گئے. ہاتھ پیر انہوں نے رسوں سے باندھ دیے مرے. یہ کیسے ایک دم سے باندھ دی؟ ایک دم سے انہوں نے اٹھایا ہے. 5 شکلیں کیسی ہیں, کس طرح کا حلیہ ان کا؟ ان کے حلیے خوفناک ہی تھے. ٹیٹو بنے ہوئے ہیں ان کے, کسی کے ہاتھ پہ ٹیٹو تھا, کسی کے باڈی پہ, جگہ جگہ ٹیٹو زیادہ تھے ان کے بنے ہوئے تھے نا. تو وہ افغانی اور ایرانی تھے. تو ان کی ہمیں زبان بھی نہیں آتی تھی. ہم ان سے کوئی سوال کرتے تھے بس وہ یہ اشارے سے کہتے چپ خاموش, اس طرح سے وہ بولتے. جو آپس میں بات کر رہے تھے اس کی سمجھ آتی تھی؟ نہیں, ہمیں نہیں بالکل بھی سمجھ آتی تھی وہ کیا بات کرتے ہیں. ہم ان کے آگے روئیں, ہاتھ جوڑیں گے. آپ 4 لوگوں کے علاوہ وہاں پہ اور کتنے لوگ تھے موجود اس ٹائم جہاں پہ ہمیں ہاتھ پیروں سے باندھا گیا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, ہم ہی 4 تھے. ٹھیک ہے. جو ہمیں باندھنے والے تھے وہ 8-9 بندے تھے. اچھا, ہاتھ پیر باندھ دی, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بے ہوش کرنے والی وہ دوائی پلائی ہے, زبردستی ہمیں پلائی ہے. اگر نہیں پیتے تو وہ منہ پہ ہمارے مکے مارتے تھے, منہ سے خون نکلتا تھا. وہ پھر ہمیں لے کر گئے کوئی, ہمیں تو پتہ چلا جب ایک جگہ میں لے کر گئے وہاں ہمیں ہوش آئی ہے. تو گلے میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں, تالا لگا ہوا ہے, پیروں میں زنجیر لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہلے سے دوسری رہائش پہ لے کر گئے تھے نا, وہاں ہمیں ہوش آئی. تو وہاں دیکھا تھا 3 سے 4 بندے ہے تھے جن کے اوپر تشدد ہوا, کپڑے خونوں میں لبڑے ہوئے ہیں, کمرے میں بھی خون لگے ہوئے تھے. تو ہم تو بس وہیں مر گئے تھے دیکھ کے, یہ کیا بنا. ہم تو ایک لیگل طریقے سے آپ کے سامنے ان کو بھی مار رہے تھے وہاں پہ؟ ہاں, ایک ہی کمرے میں ہم سب کو مارتے تھے. کبھی اغوانیوں کو مارتے تھے, کبھی ہمیں مارتے تھے. جس طرح ان کے گھر والوں سے بات ہوتی تھی, کسی کے گھر والے اگر کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں تو اغوانیوں کو مارتے تھے. ہمارے گھر والوں نے بولا پیسے نہیں ہیں, تو اس طرح سے وہ ہمارے اوپر تشدد کرتے تھے. آدھا گھنٹہ لگاتار سنگلوں سے, لوہے کے راڈ سے, چپٹیوں سے مارتے تھے. ہمارے جسم سے خون کے چھٹے نکل کے کندھوں میں لگتے تھے, دیواروں میں لگتے تھے. اچھا, گھر آپ کے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی شاید آپ کو, یہاں لوگوں کے نا وہاں کان بھی کاٹے ہوئے ہیں. وہ بھی بالکل حقیقت بات ہے. کان ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے 3 لڑکوں کو لٹایا ہوا ہے اور کان کاٹ کے وہ بوٹیاں ہمیں دکھاتے تھے. اگر آپ کے گھر والوں نے پیسے نہیں دیے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا.
तो आपने घर कैसे रब्ता किया पीछे? उन्होंने हमारे आपके मोबाइल पास मोबाइल वगैरह चीज़ कुछ नहीं है, ना उनको आपकी समझ आ रही ज़ुबान की, ना उनको आपकी आ रही है, तो कैसे रब्ता हुआ? हमने उनसे रब्ता नहीं किया। जो हमारे घर वालों को गाइड करता था वो भी उनका ही बंदा था, लेकिन वो सामने नहीं था, वो फ़ोन पे था, उसको उर्दू आती थी। उन्होंने हमारे मोबाइलों से हमारे रिश्तेदारों के, जैसे हमारे बहनों हो गए, मामू हो गए, भाई हो गए, कज़न हो गए, सबके नंबर उन्होंने लिए हैं। उनका फिर एक ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप में वीडियो सेंड करते थे, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके, वो इतना तशद्दुद करके वो वीडियो हमारे घर वालों को सेंड करते थे। घर वालों से वीडियो देखी नहीं जाती थी, जो भी वीडियो देखता था वो उसका बुरा हाल हो जाता था कि ये क्या ये पढ़ भी रहा भाई, है। अच्छा आपको कैसे, मतलब कि शौक है कि वैसे ही आपने कहा कि ये जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, चक्कर लगा के हूँ शायद, कैसा फील ये किया? मेरे कज़न थे, मैंने कहा मैं भी इनके साथ चला इन्होंने जाऊँगा। कहा था कि खुद दिल की मैंने कहा शौक था मुझे। देखा वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जी बहुत बुरा हाल क्या दिल करता है अब जाने को? नहीं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी हैं आपने? बहुत खौफनाक मंजर था वहाँ। भैया आप? जी मेरा कज़न जा रहा था, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैंने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए सर, इसीलिए मैंने इसके साथ इरादा अच्छा, बनाया। इनकी शादी हुई है, आपकी तो नहीं किसी की शादी? नहीं सर, मेरी शादी नहीं अच्छा हुई। ठीक है, जी तो फिर कैसे प्लान बना? बस ये जा रहा था सर, मैंने कहा मेरे भी डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, इन्होंने जमा करवा दिए, काम बन गया। पर ये नहीं पता था ये होगा हमारे साथ उधर जाकर। 13 से 14 दिन उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद कितने दिन होता रहा? लगातार, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। खाने को क्या देते थे? खाने को एक रोटी देते थे, एक टमाटर देते थे सर। 24 घंटे में एक दफ़ा रोटी देते थे, वो भी अपनी मर्ज़ी से। वो रोटी होती थी टिश्यू पे, वो भी पानी मार के नरम करनी पड़ती थी, और एक टमाटर से वो रोटी देते थे। उनको जो लीड करता था वो तरह तरह के मोबाइलों से लीड करते थे। मेन बंदे जो सामने नहीं आते थे, जो तशद्दुद करने वाले थे वो हमारे सामने ही होते थे। आइस पीते थे, चर्स पीते थे, शराब पीते थे, फिर हमारे ऊपर वो तशद्दुद करते अभी थे। क्या प्लान है नेक्स्ट, कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हैं? अभी हम कहीं भी नहीं जाना चाहते, अपने मुल्क में रहना चाहते हैं इंशाल्लाह। अब कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरे पाकिस्तान के नौजवानों को भी कहते हैं कि अपने मुल्क में ही करें और इन एजेंटों की बातों में ना आएँ। ये एजेंट नाम के जो सबसे बड़े माफिया बने हुए हैं, इस तरह से नौजवानों को ले जाते हैं और फिर आगे जाके फ़रोख्त कर देते हैं। अभी जो सारी सूरत हाल बताएंगे ना, इनके मामू बताएंगे कि बच्चों के साथ कैसे रब्ता हुआ, और जो किडनैप करने वाले हैं, अगवा करने वाले हैं, वो कोई और नहीं है, वो पाकिस्तानी ही हैं। और कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और किस तरीके से इन्होंने उनको ट्रेस किया है। जी बिल्कुल आमिर भट्ट साहब, ये बिल्कुल पाकिस्तानी है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने हमारे बच्चों को फ़रोख्त किया वो पाकिस्तानी है। ठीक है, बाहर के लोगों से तो हम गिला नहीं ना कर सकते। हमारे बच्चों को सेल किया है मियाँ इश्तियाक ने, और मियाँ इश्तियाक और मियाँ फ़ारूक, ये ननकाना के हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये कज़न है, पाकिस्तान में इनकी रिहाइश ननकाना में है, और बाहर इनकी रिहाइश इश्तियाक की ईरान में है, और मियाँ फ़ारूक की इटली में है। 3 बंदे ये हैं, 2 बंदे ये 5, और 2 बंदे हमारे पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वहाँ के जो वो तर्जमान है, वहाँ पे 2 तर्जमान हैं। बड़ा इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं आप। सर मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, इल्ज़ाम मैं क्यों लगाऊंगा अपने इदारों पे? एम्बेसी पे आप, ये भी एक सवालिया निशान, बड़े लोग ट्रोलिंग करेंगे नीचे। सर करेंगे, लेकिन मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ कि इनमें जो सबूतों पे बिल्कुल, इनमें फैज़ रसूल फैज़ी है, ये भी तर्जमान है पाकिस्तान का। आसफ जलाल है, ये भी तर्जमान है पाकिस्तान का। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इस पे इल्ज़ाम क्यों ना लगाऊं कि हमारे बच्चों को जो बंदा लेके जा रहा है गाड़ी में, आपको क्या पता कौन कहाँ जा रहा है? ये जिनके अभी नाम लिए वो इस केस में मुलव्विस हैं। जी, ये जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर 2 घंटे पहले जहाँ पे इन्होंने पहुँचना था ना, 2 घंटे पहले कॉल कौन कर रहा है? फैज़ रसूल फैज़ी। अच्छा, उस ड्राइवर के मोबाइल से ये बच्चा बात करता है। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बच्चा बताएगा ना, उनकी गाड़ी में ये तीनों मौजूद ये मौजूद थे। इस बच्चे से वो कह रहा है जनाब अगर कोई मामला हो तो मुझे बताना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं, फैज़ रसूल फैज़ी तर्जमान है पाकिस्तान का, खुद को बताता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, खुद को बताता है कि मैं पाकिस्तानी तर्जमान हूँ, आसफ जलाल और ये। अब जब वो अगवा होने से पहले ये कह रहा है कोई मामला हो तो मुझे बताना, मेरा नंबर ले लो, उसे क्या पता कौन बंदा कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, बताएं ना आप। मैं पूरी प्लानिंग सेट की हुई है, ये ग्रुप है, ये हमारे बच्चे बाज़ाब हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें हमारे FIA का बड़ा किरदार है, ख़ासकर जनाब ये सरफराज। लोगों ने इनको ट्रेस कैसे किया? ये जिस तरह नंबर आते गए, ठीक है,
कितनी डिमांड और कितने पैसे बाय हैंड दिए हैं, ट्रांसफर किए, क्या सूरत हाल? ये हमने 90 लाख जो है अकाउंटों में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, एक ही अकाउंट में या मुख्तलिफ थे? और 50 लाख मैंने बाई हैंड दिया आज़म मार्केट में। नहीं, जो ट्रांसफर किए हैं वो मुख्तलिफ अकाउंट, 4 अकाउंट है, ठीक है, वो लाहौर के ही हैं? लाहौर के, मैज़ान बैंक के हैं, लाहौर के हैं भाई। ठीक है। अच्छा, जो आगे ये मुकम्मल है बाय अभी। हैंड दिए वो किसको दिए हैं? ये चमन वालों की दुकान है 120 नंबर आज़म मार्केट में, चूना मंडी। बाय हैंड दिए हैं? भाई हैंड दिए भाई। उस पठान ने कहा फलां बंदे फलां दुकान पे जाओ। को दिए हैं? मैं नहीं जानता वो पठान है वल्ला कौन है, लेकिन जब आपने 50 लाख दिए, आप अकेले गए हैं, कोई साथ था? मुझे मेरे 2 भाई मेरे साथ थे। ठीक है, बाय हैंड दिए, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी करवाई कि बच्चे आपके वापस आ जाएंगे? उनको बच्चों का नहीं था पता। पठान ने कहा मैं आप इस तरह करें चूना मंडी आप जाए भी तो देखे ना, पहले कितने दिए? 90 लाख। जी। ठीक है, आपको क्या पता था? यकीन दहानी होते बच्चे पता नहीं आते कि नहीं आते? 90 लाख आंखें बंद करके आपने सर वो हमने रिस्क लिया था। 50 लाख दी है सर हमने रिस्क लेना ही था। बड़ा रिस्क ले लिया। बच्चे तो ऑलरेडी उनके पास थे, हमारे पास कौन सी चॉइस थी आप बताएं। FIA का जो मुलाजम था, जो अफसर था यासर साहब, वो कह रहा भैया आप एक ही हल है इसका, आप पैसे दे दें, हो सकता है वो छोड़ दें, हो सकता है वो छोड़ दें, पैसे दे दें। हमारे पास चॉइस ही नहीं थी, और बताएं हम क्या करते। हमने फिर वो पैसे दिए हैं, बड़ी अमाउंट दे दी। अच्छा, फिर अब पैसे दे दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो अकाउंट्स वाले हैं ये भी इधर हैं, वो दुकान वाले वो भी इधर हैं, नंबर ऑन है, अकाउंट नंबर ऑन है, और सारी जो बंदे चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। अब जो पकड़ के दिए हैं भाई इनकी तफ्तीश करें, पूछे बाकी बंदे कहाँ हैं, बताएं ना किधर हैं। एविडेंस से बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा भाई। मुझे क्या पता फैज़ रसूल फैज़ी कौन है, ये तर्जुमान है क्या है, मैं पाकिस्तान बैठा हूँ। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? टोटल इधर 3 हो गए, चौथा काशिफ मेतला जो हुए हैं कि करवाए हैं? वो तो करवाए ना, हमने खुद मैं पकड़े। इसलिए ऐड कर दूं, हुए हैं, वो पुलिस क्रेडिट हाँ, भेजेगी। इसमें जो है ना, ये जो अब हमारे साथ जो तावन कर रहा है ना, वो FIA का डायरेक्टर है सरफराज विरक, बब्बर शेर है। मैं कह रहा हूँ बब्बर शेर है क्योंकि हमारे बच्चे बाजी आप करवा दिए, हमारे लिए तो बब्बर शेर है। उसके साथ एक वकार अवान है, उनके नीचे अफसर है, मैडम आयशा है। ये अब हमारा काम कर रहे हैं। अब हमारी 18 तारीख है, 18 तारीख उसने कहा अगला काम जो अगली रिकवरी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, हम 18 तारीख को आपने आना, हम आपको बताएंगे। सर घर में क्या सूरत हाल थी? बच्चे गए तो खुशी है ओ भाई, और एकदम जो से- मर जाते हैं ना, जो मर जाते हैं उनके लिए आप 24 घंटे बाद ना जो आंसू आना भी देखें बंद हो जाते हैं। एक मतलब पता होता है वो दुनिया से चला गया है, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया है। जो जिंदा उसके लिए आप कैसे सब्र करेंगे? और फिर आपको ब्लैकमेल कह रहा ले भी हूँ एक दी तो ला देंगा, अगले दिन 24 घंटे बाद अगले दिन ला देंगे, पैसे दो। वीडियोस भी आपको उन्होंने सेंड वगैरह मुकम्मल वीडियोज़। आपको एक वीडियो भी उन्होंने सेंड की जहाँ पे कान कटे हुए कान- हैं। आपको बताया था कि ये आपके बच्चे हैं, ये कोई उस और वक्त तो परेशानी में यही लग रहा था ये हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथ वो बांधे हुए, कान ये कटे भी हुए, ये लेटे वहीं पे हुए मौजूद थे। जिन बच्चों के कान काटे हैं इनके सामने काटे, ये वहीं पे मौजूद थे। ठीक है। कान काटने के ठीक 8 से 12 घंटे बाद वो अगली वीडियो भेजते हैं, इनको बरहाना करके तशद्दुद कर रहे हैं, गर्म राड से मार रहे हैं। तो वो गर्म राड मारते थे जहाँ पे लगता था वो ये मतलब पीछे जख्म बन जाते तीनों थे। को या सिर्फ एक को? 3 4 थे ये, बराबर एक के- लड़का और था इनके साथ। सबको मारते थे, बराबर लिटा के मारते थे नंगे पाँव, ऐसे मारते और वही वीडियो सेम वही बरहाना वीडियो वही भेजते। हमारी ऊपरी हुई है, अभी भी निशान कमर पे मौजूद है। ये चाकू के निशान है, ये देखो अभी भी नहीं निशान के 1 महीना हो गया, अभी तो कमर ये तो पे शुक्र निशान मनाएं कि मौजूद है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपने घर आ गए। जी नाज़रीन, मज़ीद इसको क्या करें, सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन जो है ना, ये बाहर वाले जो शौक हैं ये आप लोगों को क्लोज़ करने पड़ेंगे। कमेंट्स में लाजमी अपनी जो कीमती राय बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।